بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ جیسے ہی حالات بہتر ہوئے میں پڑھائی دوبارہ شروع کر دوں گی۔ وہ کچھ نرم پڑتے ہوئے بولے، لیکن تم نے ابھی صرف میٹرک کیا ہے، تمہیں کہاں نوکری ملے گی؟ آپ مجھے کوشش تو کرنے دیں، آگے اللہ مالک ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولے۔ میں دوسرے دن سودا لینے کے بہانے قریبی پی سی او پر گئی اور طاہر کو فون کر کے کہا کہ وہ فوری طور پر مجھ سے ملے۔ وہ میرا چچا زاد بھائی تھا اور ٹیکنیکل کالج سے ڈپلومہ کرنے کے بعد لانڈی کی کسی فیکٹری میں سپروائزر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ چچا کے مالی حالات بھی کچھ اچھے نہ تھے، لیکن وہ ہمارے مقابلے میں بہتر زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی، لیکن چچی اپنے آپ کو سیٹھ یعنی سمجھتی تھی، اور طاہر کی ملازمت کے بعد تو ان کا دماغ عرش پر پہنچ گیا تھا۔ وہ بے حد فضول خرچ تھی، اور چچا کی آمدنی کے علاوہ طاہر انہیں جو کچھ دیتا اسے بھی وہ بے دردی سے اڑا دیتی۔ طاہر کے علاوہ ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ چچا نے بچپن میں ہی مجھے طاہر کے لیے مانگ لیا تھا، اس لیے میں بھی اسے اپنا سب کچھ سمجھنے لگی تھی اور اپنے ہر کام کے لیے اسی کی طرف دیکھتی۔ وہ شام کو چھٹی کے بعد میرے پاس آ گیا۔ میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، ابھی تم 18 سال کی نہیں ہوئی، تمہیں ملازمت نہیں مل سکتی۔ میں نے جل کر کہا، اور یہ جو ورک شاپوں اور گیراجوں میں 12 سال کے لڑکے کام کرتے ہیں، ان پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ بالکل ہوتا ہے، لیکن یہ ورک شاپ اور گیراج لیبر ڈپارٹمنٹ میں رجسٹر نہیں ہوتے۔ تم مجھے کسی غیر رجسٹرڈ ادارے کا پتہ بتا دو، میں وہاں چلی جاتی ہوں۔ بچوں جیسی باتیں مت کرو سیما، وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، تم صرف میٹرک پاس ہو، تمہیں کوئی ڈنگ کی ملازمت نہیں مل سکتی۔ اگر پڑھائی جاری نہ رکھ سکتی تو کوئی کورس کر لو، مثلا آج کل کمپیوٹر کی بہت مانگ ہے، اگر تم نے 6 مہینے کا بھی کورس کر لیا تو چانس بن سکتا ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ اس کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، یہاں فیس بھی علاقوں کے حساب سے مقرر ہے۔ اگر ڈیفنس میں یہ فیس 10,000 ہے تو ملیر میں زیادہ سے زیادہ 3,000 ہوگی۔ میرے ایک دوست کا انسٹیٹیوٹ ہے، اس سے بات کرتا ہوں، شاید وہ کچھ رعایت کرتے۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچنے لگی کہ اگر اس کے دوست نے رعایت بھی کرتی تو میں فیس کہاں سے دوں گی؟ میرے پاس تو 100 روپے بھی نہیں تھے۔ بہت سوچنے کے بعد میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ دوسرے دن میں اس اسکول میں گئی جہاں میں نے میٹرک تک پڑھا تھا۔ وہاں سب ٹیچرز مجھے جانتی تھی، بلکہ پرنسپل کی تو میں چہیتی تھی۔ میں نے انہیں مختصر اپنے حالات بتائے اور کہا کہ میں کوئی کام کرنا چاہتی ہوں۔ انہیں یہ سن کر بہت افسوس ہوا اور وہ کہنے لگی، تم جیسی ذہین اور باصلاحیت لڑکی کی تعلیم ختم ہونا ایک المیہ ہے۔ دیکھو، میں اسکول کے مالک سے بات کر کے تمہارے لیے کوئی جگہ نکالتی ہوں، تم 2 دن بعد آنا۔ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور مجھے مددگار ٹیچر کی جاب دے دی۔ تنخواہ تو کچھ زیادہ نہیں تھی، لیکن کچھ نہ ہونے سے بہتر تھا، اور میں کم سے کم کمپیوٹر کورس کی فیس بآسانی دے سکتی تھی۔ میرے ذمہ مختلف نوعیت کے کام تھے، مثلا طالب علموں سے فیس وصول کرنا، اہم کاغذات کی فائلیں بنانا اور کسی ٹیچر کی غیر موجودگی میں اس کی کلاس لینا۔ میں صبح 8 بجے سے 1 بجے تک اسکول میں رہتی اور شام کو کمپیوٹر سیکھنے چلی جاتی۔ اسکول کے دفتر میں بھی کمپیوٹر تھا اور میں فارغ وقت میں اس پر پریکٹس کرتی رہتی۔ پہلی تنخواہ ملنے پر میں بابا کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی اور ان کا مکمل چیک اپ کروایا۔ اس نے باقاعدگی سے دعا استعمال کرنے کی ہدایت کی اور ماسک لگا کر کام کرنے کے لیے کہا۔ میں نے بابا سے ان دونوں باتوں پر عمل کرنے کا وعدہ لیا۔ میرے نزدیک ان کا صحت مند ہونا زیادہ اہم تھا، کیونکہ اسی صورت میں وہ کام کرنے کے قابل ہو سکتے تھے۔ میرا کمپیوٹر کورس مکمل ہو گیا تو میں نے مختلف کمپنیوں میں ملازمت کے لیے درخواستیں دینا شروع کر دی۔ طاہر کا خیال تھا کہ مجھے ایڈوانس کورس بھی کر لینا چاہیے۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اس کے ساتھ ہی فرسٹ ایئر کے امتحان کی تیاری بھی شروع کر دی۔ میں ہر اتوار کو اخبار میں اشتہار دے کر 2-4 جگہ ملازمت کے لیے درخواست ضرور بھیجتی، لیکن کہیں سے کوئی جواب نہ آتا۔ البتہ میڈم میرے کام سے بہت خوش تھی، انہوں نے دفتر کا سارا کام مجھے سونپ دیا۔ میری تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی اور اب میں نسبتاً پرسکون زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس روز طاہر آیا
तो इसका मुंह उतरा हुआ था। इसने बराई हुई आवाज में बताया कि इसे दुबई में मुलाजमत मिल गई है और वो 1 हफ्ते बाद जा रहा है। ये सुनकर मैं सदमे की कैफियत में आ गई और बोली, यहाँ भी तो अच्छी खासी मुलाजमत थी, फिर दर बदर की ठोकरें खाने क्यों जा रहे हो? यहाँ रहकर मैं कुछ नहीं कर सकता। इसने मरी हुई आवाज में कहा, जो कमाता हूँ सब खर्च हो जाता है। तुम्हें शायद यकीन ना आए कि मेरे बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं है। हर महीने पूरी तनख्वाह निकाल लेता हूँ और मेरे पास कुछ नहीं बचता। मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। बहनों की शादियां करनी है, मकान भी बनाना है, गाड़ी भी खरीदनी है और अम्मी अब्बू को हज भी करवाना है। तुम ही बताओ, यहाँ रहकर मैं ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ? इसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं इस प्लान में कहीं नहीं थी। जी चाहा कि पूछूं मेरे बारे में क्या सोचा है, लेकिन खुददारी आड़े आ गई। इसे सिर्फ अपने घर वालों की फिक्र थी, मेरा कोई ख्याल नहीं था। लिहाजा मैं मुंह फेर कर बोली, जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। ताहर के जाने के बाद जिंदगी बेकैफ लगने लगी। गोया कि वो कई दिन बाद आया करता था, लेकिन इसे देखकर मेरी आंखों में ठंडक उतर आती थी। मैं इसे जितना बुलाने की कोशिश करती, वो उतना ही मुझे याद आने लगता। मैंने अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मसरूफ रखने की कोशिश की। सुबह स्कूल जाती, शाम को कंप्यूटर सीखने और रात को पढ़ाई करती। इसी तरह 2 साल गुजर गए। मैंने कंप्यूटर का एडवांस कोर्स कर लिया और शिद्दत से बेहतर मुलाजमत तलाश करने लगी। ताहर इस दौरान एक दफा छुट्टियों पर घर आया तो इसने कुछ देर के लिए हमारे यहाँ आने की जहमत भी अदा कर ली। इसने रस्मन बाबा की खैरियत दरियाफ्त की, अम्मी से कुछ बातें की और फिर मेरे पास चला आया। वो खासा कमजोर और दुबला लग रहा था। इसने पास बैठते हुए पूछा, कैसी हो सीमा? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? लगता है बहुत ज्यादा काम कर रहे हो या खाने पीने का ख्याल नहीं रखते। दोनों ही बातें हैं। वो फीकी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए बोला, ज्यादा खाने के लिए ज्यादा मेहनत करना होती है और वहाँ कौन है जो मेरे खाने पीने का ख्याल रखे? बस जो मिल जाए खा लेता हूँ। फिर भी तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, सेहत से ज्यादा कुछ नहीं होता। तुम ठीक कह रही हो, इसने कहा और कुछ देर बैठकर चला गया। इसने मेरे बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन वो कुछ परेशान सा लग रहा था, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो लेकिन हिम्मत ना पड़ रही हो। कुछ दिनों बाद इसकी बेचैनी की वजह भी मालूम हो गई। वो 1 महीना रहकर दुबई वापस चला गया। इसके जाने के 1 हफ्ते बाद चाचा और चाची हमारे घर आए। चाची ने बहुत कीमती लिबास पहन रखा था, हाथों में सोने की चूड़ियां और गले में लाकर जगमगा रहा था। इनकी सज धज देखकर लग रहा था जैसे ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आई हो। वो अपनी उम्र से 10 वर्ष छोटी लग रही थी। चचा ने भी बहुत महंगा कुर्ता शलवार का सूट पहना हुआ था और बाबा इनके सामने कम हकीकत लग रहे थे। मुझे चची अपनी छिछोरी तबीयत की वजह से कभी भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं चाय देकर वहां से हट गई। अलबत्ता ये जानती थी कि इनकी आमद बेमकसद नहीं, इसलिए दरवाजे की ओर से इनकी बातें सुनने लगी। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद चची अपनी बात की तरफ आ गई और गला साफ करते हुए बोली, भाई साहब, मैं तो चाह रही थी कि इस बार कोई रस्म अदा कर देती, लेकिन आजकल के लड़के हमारी कहाँ सुनते हैं। इसने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। कोई बात नहीं, बाबा बोले, अगली बार आया तो देख लेंगे, हमें भी कोई जल्दी नहीं है। बाबा की बात सुनकर चची बोली, मुझे तो इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। जब मैंने बहुत ज्यादा इसरार किया तो वो बोला कि वो फिलहाल अपनी शादी के बारे में नहीं सोच रहा, अभी इस पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहनों की शादियां करनी है, मकान बनाना है, गाड़ी खरीदनी है और ना जाने क्या क्या कह रहा था। अहमक है वो। चचा गुस्से से बोले, ये तो 10 साल का प्रोग्राम लगता है, क्या इतना अरसा सीमा इसके इंतजार में बैठी रहेगी? यही तो मैं कह रही हूँ कि अगर वो शादी के लिए तैयार नहीं है तो हमें ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। ना जाने इसके दिल में क्या है और वो क्या चाह रहा है। मेरे अंदर कोई चीज छन से टूट गई, यूं लगा जैसे मुझ पर आसमान गिर गया हो। मुझे यकीन था कि ताहर ने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा, ये सब चची अपनी तरफ से कह रही थी। दरअसल पैसा आने के बाद इनकी निगाहें बदल गई थी और वो हम लोगों को बहुत हकीर व कमतर समझने लगी थी।
लालच ने इनकी आंखों पर पट्टी डाल दी थी। वो जानती थी कि मेरी और ताहर की शादी सरासर घाटे का सौदा है। जिस घर में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हों, वहां से बारी बार कम जहीज की तवक्को कैसे की जा सकती है। अब अम्मी के बोलने की बारी थी। इन्होंने चची को कड़ी नजरों से देखा और बोली, कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि रिश्ता खत्म कर देते हैं। पूरे खानदान को मालूम है कि सीमा और ताहर एक दूसरे से मंसूब हैं। इन्हें क्या वजह बताई जाएगी। कुछ भी कह देना, चाची बेनियाजी से बोली। कई साल पुरानी मंगनियां टूट जाती हैं, यहाँ तो सिर्फ बात ही तय हुई थी। बाबा ने पुरउम्मीद नजरों से चचा की तरफ देखा तो वो नजरें चुराते हुए बोले, सीमा मुझे अपनी बेटियों की तरह अजीज है। मैं नहीं चाहता कि वो बिला वजह ही इंतजार की सूली पर लटकती रहे। इसलिए बेहतर यही है कि कोई अच्छा लड़का देकर इसकी शादी कर दो। तुम्हारे मशवरे का बहुत शुक्रिया, बाबा ने तलखी से कहा। मैं अपनी बेटी का बुरा भला खुद समझ सकता हूँ। उस दिन मुझे मालूम हुआ कि पैसे के सामने खूनी रिश्ते भी बिक जाते हैं। चचा के घर में 4 पैसे क्या आए कि इन्होंने सगे भाई के अरमानों का भी खून कर दिया। मुझे इस हकीकत का भी अंदाजा हो गया कि आज के दौर में पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है और लोग पैसे वालों की चौखट पर ही सजदा करते हैं। मैंने ताहर का नाम अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया और फैसला कर लिया कि पैसे को ही अपनी ताकत बनाऊंगी, ताकि कल कोई और लड़का मेरे घर आकर मुझे या मेरे बाप को जलील ना कर सके। पैसा कमाने के 2 ही तरीके हैं, जायज और नाजायज। मेरी रगों में शरीफ बाप का खून दौड़ रहा था, इसलिए नाजायज कमाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। जायज तरीके से पैसा हासिल करने के लिए जरूरी था कि मेरे पास तालीम या कोई हुनर हो। बहुत सोचने के बावजूद ये समझ में नहीं आया कि वो कौन सा हुनर है जिसके जरिए मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकूं। चनाचा मैंने अपनी तालीमी काबिलियत बढ़ाने का फैसला कर लिया। इसके लिए जरूरी था कि मैं दूसरी मुलाजमत का ख्याल दिल से निकाल दूं। मैंने ऐसा ही किया और स्कूल की जॉब पर ही गुजारा करते हुए बीकॉम में दाखिला ले लिया। फिर मैं घर के करीब वाक़या एक कोचिंग सेंटर में गई। इन्होंने मुझे 9वीं और 10वीं जमात की क्लासें दे दी। इस तरह मुझे वहां से भी आमदनी होने लगी। बाबा के हालात वैसे ही थे, कभी काम मिल जाता और कभी खाली हाथ वापस आ जाते। फिर भी अम्मी की सिलाई और मेरी मुलाजमत से कुछ सहारा हो गया था। अब मैं पूरी लगन और मेहनत के साथ बीकॉम की तैयारी कर रही थी। मुझे यकीन था कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद मुझे किसी बैंक या प्राइवेट फर्म में अच्छी जॉब मिल जाएगी। फिर अचानक ही बाबा की रूठी हुई किस्मत इन पर मेहरबान हो गई। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ठुकराई हुई लड़की का बकिया हिस्सा देखने के लिए पार्ट 2 का विजिट करें। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।